Hello everyone. We will be discussing today the English language questions that I have already given to you all in the question sheet. And we have discussed in the last class about the sentences and the use of subject and predicate. And I have told you how to identify the subject and the predicate in a sentence along with the main verb. Okay. Yes, Bhakti, you have already joined. Okay. So let's start. Bhakti, I will not be waiting for everybody else. I will be starting it because the time is already running. Okay. So shoot your answer, Bhakti, for the first question. In this question, actually, this question, the crackling of geese saved Rome. In this question, what was the main verb? Just tell me what was the main verb in this question. Okay, saved is the main verb of this question. Okay, so I have told you that when we will discover what is the main verb of the sentence, then we will get to know the subject as well as the predicate in the flash. Okay, in a flash we will get to know. So who is doing this main verb? Who saved Rome? What saved Rome? Who or what saved Rome? I think it is the crackling of geese. Is it? The crackling of geese saved Rome. So what should be the subject of the sentence? The subject of the sentence should be the crackling of geese. Because what is doing, who is doing the verb here? Crackling of geese is doing this verb. Is what is who actually this sentence is having three parts. See, crackling of geese is the subject. Yes, the crackling of geese is the subject. What I told you is that here. See here. This sentence is having three parts. First is this. First is this saved. This is the verb. Okay. And who is performing this verb? Just ask it in your mind. Who saved Rome? Or what saved Rome? So you will get an answer that the crackling of geese saved Rome. Okay. Will you get that answer? Yes or no? That the crackling of geese saved Rome. So you have already got your subject. When you will ask, who saved Rome? Who saved Rome? Then you will get the answer that crackling of geese, not only crackling or not only geese. The whole crackling of geese, the crackling of geese saved Rome. And what will be the predicate of this sentence? The predicate of the sentence would be saved Rome. And remember, most of you have done this mistake in your homework that you have written the main verb not with the sub predicate. Okay, predicate is the part, sorry, main verb is the part of the predicate. Okay, so remember this, that the predicate is saved Rome, and in that predicate the main verb is saved. Have you got it? Have you got it, Bhakti? Okay.
So let's move on to the second sentence. The boy stood on the burning deck. Bhakti, tell me the main verb of this sentence. Main verb of this sentence. This whole second sentence. What would be the main verb of this sentence? Stood. Yes. Stood is the main verb of this sentence. And who stood on the burning deck? Who stood on the burning deck? The boy stood on the burning deck. So what is the subject of this sentence? The boy. What is the subject of this sentence? The boy is the subject of this sentence. And whatever is left after the subject will be our predicate. So stood on the burning deck is the predicate. Is the predicate. This whole stood on the burning deck. This whole will be our predicate. And the stood will be our main verb. Have you got this, Bhakti? Okay. So let's move on to next question. That was question number 3. Tubal-Cain was a man of might. Tubal-Cain was a man of might. Tell me the main verb here, Bhakti. Main verb of this sentence, yes, was. Was the main verb of this sentence. Okay. And who was a man of might? Tubal-Cain was the man of might. So the subject of this sentence should be Tubal-Cain. Have you got it? Tubal-Cain should be the subject of this sentence. Bhakti, are your answer getting correct? Okay. Tubal-Cain is the subject. Subject of this sentence. And whatever left after the subject, yes, leaving the first one. No problem, Bhakti. We will be doing more and more questions in this case. Okay. Was a man of might. The man was a man of might. So, but Bhakti, have you understood the first question? Okay. Okay. Tubal-Cain was a man of might. So, Tubal-Cain is the subject of the sentence, and whatever left after the subject is the predicate. And in the predicate, was is the helping verb. Okay. So, let's move on to question number 4. In question number 4, Bhakti, what is the main verb, beta? Make. Yes. Make is just a second. Make. Only make. Only make, Bhakti. Only make. Do not make तो नहीं हो सकता क्या इसको? क्योंकि negation है बेटा ना. Negation है ना. अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या ये पूछेंगे what make a present या फिर ये पूछेंगे what do not make a present? Do not make a present पूछेंगे ना. तभी तो हमें आंसर मिलेगा ना stone walls. तभी हमें आंसर मिलेगा ना stone walls. तो यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब आएगा वो आएगा पूरा ये डू नॉट मेक. ठीक है. दिस इज द कंपाउंड वर्ब एक्चुअली. ठीक है. इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे. इसी क्वेश्चन से सीखना स्टार्ट कर दो कि अगर हम लोगों को पूछा गया है मेन वर्ब तो मेन वर्ब हमेशा वो वर्ब होगा जो हमें सब्जेक्ट का आंसर देगा. ठीक है. कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है उससे हमें पता चल जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन एक से पूछेंगे व्हाट डू नॉट मेक अ प्रेजेंट. तब आंसर मिलेगा स्टोन वॉल्स का.
अगर हम लोग ये पूछेंगे व्हाट मेक अ प्रिजन, तब तो हमें आंसर ही नहीं मिलेगा ना, आंसर ही नहीं मिलेगा तब तो। तब हमारा यहाँ पे जो बेटा मेन वर्ब है दैट इज डू नॉट मेक, ठीक है। और स्टोन वॉल्स इज द सब्जेक्ट, स्टोन वॉल्स इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस whole sentence, and whatever left after the subject is the predicate, and do not make is the main verb of this sentence. Have you got, Bhakti? Have you got what I have told you? Have you understood it? I have not studied compound word. No worries, Bhakti, I will tell you. We will be having a lot of classes on these things. Okay, verbs, nouns, sentence, predicate. Okay, but today we are doing subject and predicate, so we will stick to it. But I will also tell you what are compound verbs and what are compound nouns, everything. I will tell you everything. You will be mastering English language in few days. Okay, the singing of birds delights us. Just tell me what is the main verb of main verb here of the sentence. The singing of birds delights us. Singing. What about this, beta? What is this? Delights. What part of speech is delights? Singing and delights. I'm just asking only the main verb. The main verb of this sentence is delight. Okay, I'm telling you why. When we will ask us, अगर हमारा मान लो तुमने सोचा था मेन वर्ब है सिंगिंग, तो तुमने क्वेश्चन क्या फ्रेम किया होगा ये बताओ। क्वेश्चन क्या मेन फॉर्म किया होगा सब्जेक्ट पता लगाने के लिए? सिंगिंग ऑफ बर्ड, व्हाट सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट अस। क्या इसका कोई आंसर भी बन रहा है या फिर इसका भी कोई क्वेश्चन ही बन रहा हो तो बता दो। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है सिंगिंग से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों से पूछेंगे, हम लोग अपने आप से पूछेंगे व्हाट डिलाइट्स अस, तो हमें आंसर मिल रहा है सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस, द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट्स अस, ठीक है। तो कौन से वर्ब से हमें आंसर मिल रहा है हमारे सब्जेक्ट का? डिलाइट से मिल रहा है ना, सिंगिंग से तो क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। बेटा भक्ति आ रहा है? कैन यू प्लीज रिपीट? ओके भक्ति, आई एम रिपीटिंग। देखो जैसे कि यहाँ पे तुमने बोला सिंगिंग, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलती हूँ मेन वर्ब सिंगिंग है, चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताओ क्या सिंगिंग से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सोचो जरा, अगर हमें सिंगिंग को लेकर अपना क्वेश्चन फॉर्म करना है और उसके बाद पता लगाना है कि क्या है हमारा मेन हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा? What singing of birds delights us? What singing of birds delight us? ये कोई क्वेश्चन बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है क्या यहाँ पे कोई सिंगिंग से? भक्ति, कोई सिंगिंग से क्वेश्चन बन रहा है क्या बेटा? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है सिंगिंग से, इस वजह से सिंगिंग विल नॉट बी द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा डिलाइट्स, ठीक है। इस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा डिलाइट्स, और जब डिलाइट से हम लोग एक क्वेश्चन फॉर्म करेंगे व्हाट डिलाइट्स अस, ठीक है, व्हाट डिलाइट्स अस, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा ये बताओ? व्हाट डिलाइट्स अस का क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा? द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। और सिंगिंग ऑफ बर्ड्स हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग इट भक्ति? अगर हम लोग
ये अगर हम लोग डिलाइट्स अस से अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट डिलाइट्स अस, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट डिलाइट्स अस, उसका हमें आंसर मिल रहा है द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, और सिंगिंग ऑफ बर्ड्स हमारा फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर मतलब डिलाइट्स अस, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, और डिलाइट उसमें हो गया हमारा मेन वर्ब। बेटा ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5? ओके ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भक्ति जल्दी से बताओ मुझे इसमें मेन वर्ब क्या है, जल्दी से। रूड, रूड है इसका मेन वर्ब। रूड है क्या, क्वेश्चन बना के देखते हैं। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, what rude at the table one day? Yes, was rude है हमारा मेन वर्ब यहाँ पे। yes, what was rude at the table one day? मिस किटी, तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया ना, मिस किटी हमारा क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा मिस किटी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है, और ये मेन वर्ब के साथ साथ ये पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट। बेटा ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 कह रहा है हमसे ही हैज अ गुड मेमोरी, ही हैज अ गुड मेमोरी, जल्दी से मुझे इसका मेन वर्ब बता दो भक्ति। हैज, ओके, हु हैज अ गुड मेमोरी, ही, ही हमें मिल गया आंसर हमें इसका, तो हमारा ही हो गया सब्जेक्ट, हैज हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये पूरा हमारा हैज अ गुड मेमोरी हमारा हो गया प्रेडिकेट। ओके गुड भक्ति, याला हो गया हमारा, ठीक है, याला समझ में आ गया ना बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से मुझे मेन वर्ब बता दो इसका, जल्दी से। ग्रो, यस करेक्ट, ग्रो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब, ठीक है, ग्रो है इस सेंटेंस का मेन वर्ब, और अगर हम पूछे व्हाट ग्रोस अनकॉन्शियसली, तो पता चल जाएगा कि बैड हैबिट्स, तो बैड हैबिट्स है हमारा सब्जेक्ट, और ग्रो अनकॉन्शियसली ये हमारा पूरा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का अब जल्दी से मुझे बता दो मेन वर्ब, मेन वर्ब जल्दी से, बहुत इजी सा है। यस रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स यहाँ पे है मेन वर्ब। अब हम पूछेंगे अगर एक अपने आप से कि व्हाट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हमें आंसर मिल जाएगा द अर्थ, तो द अर्थ हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, और रिवॉल्व्स अराउंड द सन हो गया हमारा प्रेडिकेट, जिसमें मेन वर्ब है हमारा रिवॉल्व्स, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस जल्दी से, जल्दी से। 10th, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, इसका मेन वर्ब इज, करेक्ट, इज हमारा मेन वर्ब,
व्हाट इज द बेस्ट फिजिशियन? नेचर। तो हमारा नेचर क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया हमारा नेचर। ठीक है, इज द बेस्ट फिजिशियन, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में ही आ गया हमारा मेन वर्ब जो है इज। चलो क्वेश्चन नंबर 7 11 बेटा जल्दी से मुझे इसका सब मेन वर्ब बताओ। जल्दी से भक्ति, भक्ति फास्ट। इन्वेंटेड, इन्वेंटेड है इसका हमारा मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब यहाँ पे है इन्वेंटेड। ठीक है, हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ? हमें आंसर मिल गया एडिसन। तो एडिसन है हमारा सब्जेक्ट। एडिसन के साथ साथ ये पूरा हमारा हो गया प्रेडिकेट। इन्वेंटेड द फोनोग्राफ हमारा बन गया प्रेडिकेट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे बता दो व्हाट इज द मेन वर्ब? हैट। ठीक है, सही है। व्हाट हैट मेनी थाउजेंड सैट्स? जल्दी से आंसर हमें मिल गया द सी। तो द सी हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा ये था मेन वर्ब हैट, और उसके बाद ये हैथ मेनी सैंड्स, मेनी थाउजेंड सैंड्स, ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, हो गया हमारे सारा आंसर। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताओ बेटा मेन वर्ब क्या है? pump. We cannot pump the ocean dry. What? Pump. Pump. What? बेटा पंप होगा या कैन नॉट पंप होगा? कैन नॉट पंप होगा ना, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट कैन नॉट पंप द क्वेश्चन ड्राई, तब हमें पता चलेगा कि हमें आंसर मिलेगा वी। अगर हम लोग ये पूछ लेंगे कि व्हाट पंप द क्वेश्चन ड्राई, तो हमें आंसर ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कैन नॉट आ गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग कैन नॉट लगाएंगे पंप के साथ तभी हमें वी मिलेगा। ठीक है, सोचो, अगर तुमने पंप बोला तो पंप बोलोगी, तो पंप व्हाट पंप द ओशन ड्राई, इसका तो आंसर है ही नहीं हमारे पूरे सेंटेंस में। लेकिन अगर हम लोग पूछेंगे व्हाट कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, तभी हमें आंसर मिलेगा ना वी। ठीक है, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट पंप हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, और कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, यहाँ से लेकर कैन नॉट what cannot pump the ocean dry, ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। आ गया बेटा भक्ति समझ में? भक्ति बेटा समझ में आया? ठीक है, चलो जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 14 का वो बता दो मेन वर्ब। क्वेश्चन नंबर 14 का मेन वर्ब जल्दी से। बोरोड। बोरोड तो नहीं होगा बेटा, बोरोड तो यहाँ पे गारमेंट्स के साथ आ रहा है। अभी यहाँ पे बोरोड ना बेटा एक एडजेक्टिव बना जा रहा है। ठीक है, मैं इस सेंटेंस को तुम्हें समझाती हूँ, ये सेंटेंस बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखो, यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब होगा वो होगा नेवर। ठीक है, नेवर विल बी आर मेन वर्ब, नेवर फिट विल। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट नेवर फिट विल, तो हमें आंसर मिलेगा बोरोड गारमेंट्स। ठीक है, और बोरोड गारमेंट्स हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, बोरोड गारमेंट्स हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और नेवर फिट वेल हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, अगर हम लोग देखें, अगर तुम सोच रही हो कि दीदी यहाँ पे बोरोड तो वर्ब है, तो क्या वर्ब भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है क्या? तो हाँ बेटा, वर्ब भी हमारा सब्जेक्ट में आ सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज कि नाउन्स ही हमारे सब्जेक्ट में आए, कभी कदार वर्ब्स और नाउन्स दोनों साथ में मिलकर भी हमारे सब्जेक्ट में आ सकते हैं, जिसमें इस बार जैसे इस बार आए। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, अगर अच्छा तुमने बोरोड लिया था तो तुमने क्या क्वेश्चन नहीं फॉर्म किया? बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, इसका तो कोई आंसर नहीं है हमारे सेंटेंस में, इसका तो क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो इसी से कर सकते हैं, व्हाट नेवर फिट वेल, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा बोरोड गारमेंट, मेन वर्ब हो जाएगा नेवर, नेवर फिट वेल हो जाएगा प्रेडिकेट। आर यू गेटिंग इट भक्ति? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 का बेटा जल्दी से मुझे मेन वर्ब बताओ। कैचेस, करेक्ट। व्हाट कैच, कैचेस यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब है हमारा यहाँ पे कैचेस। ठीक है, व्हाट कैचेस द वर्म, द अर्ली बर्ड। ठीक है, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो अर्ली, द अर्ली बर्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, कैचेस द वर्म हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे जल्दी से बता दो मेन वर्ब। इज, यस। व्हाट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, तो हमें व्हाट इज, अगर हमने ये पूछा कि व्हाट इज इंडिस्ट्रक्टिबल, तो हमें आंसर मिल जाएगा ऑल मैटर। तो ऑल मैटर इज आवर सब्जेक्ट, इज आवर मेन वर्ब। ठीक है, एंड is indestructible is our predicate. Is indestructible is our predicate. Have you got it, Bhakti? Okay, nice. चलो अब क्वेश्चन नंबर 17, बेटा जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, मेन वर्ब बताओ। is, okay, सही है। is the main verb of this sentence. What is the capital of Pakistan? अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद is the subject of the sentence, is the capital of Pakistan is the predicate of the sentence, and is the main verb of this sentence. ठीक है, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 18 में मुझे जल्दी से बता दो व्हाट इज द मेन वर्ब। प्रॉफिट, प्रॉफिट, सही है। व्हाट शुड प्रॉफिट, हु शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ये क्वेश्चन बनेगा। शुड यहाँ पे है मेन वर्ब, ठीक है, शुड है यहाँ पे मेन वर्ब, प्रॉफिट नहीं है भक्ति। ठीक है, प्रॉफिट बाय, अगर मैं पूछूं व्हाट प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो ये तो हमें नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि ये तो नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर ही नहीं मिल रहा है व्हाट प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस का। अगर मैं ये पूछूं व्हाट शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो हमें मिल रहा है आंसर वी, क्योंकि बेटा शुड लगा है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि उसे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो हम लोग शुड नहीं हटा सकते। शुड प्रॉफिट, ठीक है, शुड is should profit is the main verb of the sentence. Actually not only not profit, should is the main verb of the sentence. What should profit by experience, that is we. ठीक है, we is the subject of the sentence, should profit by experience is the is the predicate of the sentence, and should is the main verb of this sentence. Have you got it, Bhakti? क्योंकि हमने, अगर हमें वो दूसरा वाला पूछते व्हाट प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो हमें आंसर तो नहीं मिलता ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो क्वेश्चन और बचे हैं। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 19,
जल्दी से बता दो बेटा, व्हाट इज द मेन वर्ब? लीड, यस। व्हाट लीड टू रोम? ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया ना, लीड का आंसर मिल गया ना, तो ऑल रोड्स इज द सब्जेक्ट, लीड इज द main verb, and lead to Rome is the predicate of this whole sentence. ठीक है, lead to Rome is the predicate. चलो, ये समझ में आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का मुझे जल्दी से बता दो, क्या है इसका मेन वर्ब? जल्दी से बताओ भक्ति, what is the main verb of this sentence? बेटा टाइम इज रनिंग अप, जल्दी से। चलो अच्छा सुन लो, what what leads to लीड्स नहीं, कंसाइंस नहीं है बेटा इसका, कंसाइंस तो कुछ और है यहाँ पे, ठीक है। कंसाइंस इज अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। अ गिल्टी कंसाइंस इज द सब्जेक्ट, नीड्स इज द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, नीड्स इज द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, ठीक है। व्हाट नीड्स नो एक्सक्यूज, ठीक है, व्हाट नीड्स नो एक्सक्यूज was, इसका आंसर हमें मिला a guilty of conscience needs no excuse, ठीक है। तो a guilty of conscience हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। needs no excuse हमारा हो गया predicate, और needs हो गया हमारा मेन वर्ब, ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई बात नहीं, समझ में आया भक्ति? ओके भक्ति,